Good morning, students. So today we'll start with our remedial or revision, or we can say a doubt solving classes. Before I start, if you have any doubt from your side, you can ask first. Otherwise, I can just go with our PPT and unit wise question. आप लोग को कुछ doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Okay, नहीं है तो just chat box में डाल दो that you don't have any doubt. So I can start with the other things. Okay. So you all know that this is an MCQ based exam, and you are having a 36 question. So every unit it is, and 12 questions are expected if it is of 1 marks. So for every unit 12 question. Okay, the question can be again in a like MCQ manner. So some of the if you go on my blog, you will find out unit-wise question for what kind of question can be asked. So you can just go through this, and here you will find out the type of different questions and how the options will be given. So unit 1 जो है इसमें जो main point है उसको जो आप लोग को concentrate करना रहेगा, you have to go with a like very first thing you have to do is with a 3 V's. So you should know like what are the 3 V's of big data, और लाइक वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, और हर एक का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कि दूसरा चीज आप लोग को जो पता होना चाहिए इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ बिग डेटा डिलक्स, मतलब बिग डेटा कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, कौन से डिफरेंट मीडियाज है जहाँ से जनरेट किया जाता है. देन नेक्स्ट point that you have to concentrate is what are the different data repositories which are available, like data mart, data warehouse, data lake, data cubes, and analytical sandbox. So at least you should know the name and importance of all these things. Then the difference between BI and data science. So you know that business intelligence is working on a past data, historical data, and data science is working with past as well as future data. So current data and future data. तो future prediction के लिए generally data science हम लोग use करते हैं. Then what is current analytical architecture, and what are its 4 steps of that architecture? Apart from that, what is the meaning of analytical sandbox and why it is used? So it is used for when you want to analyze the huge or big amount of data. The question can be asked on drivers of big data. So, so there are like in big data ecosystem, there are 4 main parts are there. Very first is data devices. Second is data collector, डेटा एग्रीगेटर, डेटा यूजर एंड बायर. तो इसमें डेटा डिवाइसेस का डिवाइसेस मतलब जहां से डेटा हम लोग जनरेट होता है. डेटा कलेक्टर यानी ये जनरेटेड डेटा कौन उसको कलेक्ट करता है. देन डेटा एग्रीगेटर इज like who is aggregating the collected data, and data user means who require that aggregated or analyzed data. So the question can be asked on big data ecosystem. हर एक का थोड़ा डिटेल में डाला हुआ है कि डेटा डिवाइसेस का काम क्या होता है, डेटा कलेक्टर का काम क्या होता है, डेटा एग्रीगेटर, डेटा यूजर्स एंड बायर्स. So that you need to understand this big data ecosystem. Then what are the key roles of big data ecosystem? So big data ecosystem में 3 main key roles होते हैं. One is deep analytical talent, data savvy user, technology, and data enabler. And the different skill sets required for data scientists are quantitative, technical aptitude, skeptical, curious, and creative, and last is communicative and collaborative. So these are the 5 skill set which are required. हर एक के अंदर क्या मतलब, जैसे अगर हम बोल रहे क्वांटिटेटिव स्किल सेट, इसका मतलब उनको उसको मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए. टेक्निकल मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग आना चाहिए.
So likewise, what exactly that skill set means is given in this slide. So very next question is data analytics life cycle. So data analytics life cycle जो है उसके phases का sequence आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके कितने phases होते हैं. So it is having a 6 phases, and the sequence of that 6 phases is like very first is discovery and then data preparation. कभी भी याद रखो डिस्कवरी में हम प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं. डेटा डिस्कवर करने के लिए बहुत सारा डेटा लगता है, इसके लिए डेटा प्रिपरेशन होता है. एक बार डेटा समझ गया देन मॉडल को प्लान किया जाता है. प्लान होने के बाद मॉडल को बिल्ड किया जाता है. मॉडल बिल्ड होने के बाद हम उसको रन करने के बाद हमको क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है. सो वी कम्युनिकेट द रिजल्ट, और एक बार रिजल्ट प्रॉपर आ गया तो हम उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, ऑपरेशनलाइज मोड में लेके आते हैं. सो दीज आर द 6 phases ऑफ दिस. Like discovery phase is all about learning the business domain and finding the availability of resources. Then data preparation is about analytical sandbox and data conditioning and performing ETLT process. And here some common tools are required for this one. तो इसमें जो tools use होते हैं, इसका मेन काम जो है डेटा को कंडीशनिंग करना, डेटा को नॉर्मलाइज मोड में लेके आना एंड देन ट्रांसफॉर्म करना एंड डेटा को प्रॉपर्ली विजुअलाइज करना. सो डेटा प्रिपरेशन के देयर आर 4 टूल्स विच आर अवेलेबल. वेरी फर्स्ट इज Hadoop, Alpine Miner, OpenRefine एंड डेटा Wrangler. सो Hadoop जो है ये पैरेलल इंजेक्ट एनालिसिस करने के लिए परफॉर्म होता है. व्हेन यू वांट अ GUI काइंड ऑफ डेटा और आउटपुट, देन Alpine Miner you have to use. OpenRefine is a free and open source tool for messy data, and Data Wrangler, it is a tool for cleaning and transforming the data. Then next is data modeling. इसमें मॉडल प्लानिंग, इसमें डिफरेंट कौन से मॉडल्स अवेलेबल है और उसमें से कौन सा मॉडल सूट होगा हमारे डेटा टाइप के लिए. सो मॉडल सिलेक्शन इज अ मेन की रोल हियर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मॉडल यू हैव टू यूज. सो फर्स्ट इज टू डिटरमाइन लाइक कि कौन से टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, हाइब्रिड है. जिस टाइप का डेटा है वो टाइप का एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज जो है लाइक R, SAS, MATLAB, इसको जनरली यूज किया जाता है. यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स है जो यूज होते हैं. R, then SQL analysis service and SAS/Access. So these are the 3 different tools used for model planning. The next is model building. So model building मतलब एक बार जो मॉडल प्लानिंग में आपने जो मॉडल चूज किया उसको एक्चुअल डेवलप करने का काम किया जाता है. तो मॉडल को पहले ट्रेन किया जाता है, देन टेस्टिंग किया जाता है, देन उसका प्रोडक्शन चेक किया जाता है प्रॉपर्ली आंसर मिल रहा है या नहीं. सो अगेन हियर आर सम कॉमन कमर्शियल टूल. इसमें 2 टाइप के टूल आते हैं, कमर्शियल टूल एंड सम आर दी ओपन सोर्स टूल. सो कमर्शियल टूल में SAS Enterprise Miner, SPSS Modeler, product of IBM, then MATLAB, then Alpine Miner, and Statistica and Mathematica. These are some commercial tools which are used for model building. And free and open source tool भी available होते हैं जो छोटी कंपनी और इतना अमाउंट या लाइसेंसिंग पे नहीं कर सकता है. So that time R and PL/R, then Octave, Weka, Python, and SQL. These are some ओपन सोर्स टूल विच आर अवेलेबल. कम्युनिकेट रिजल्ट मीन्स एक बार आपका मॉडल बिल्ड होने के बाद आप बताते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो फेल्यूर की तरफ है या फिर सक्सेस की तरफ जनरेट हुआ है, या फिर क्या की फाइंडिंग्स है जो आपने फाइंड आउट किए और वो की फाइंडिंग स्टेक होल्डर को शो किए जाते हैं. आफ्टर इफ स्टैटिस्ट ऑल योर स्टेक होल्डर आर एक्सेप्टिंग दैट रिजल्ट्स एंड देयर इज नो चेंजेस, सो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसको पायलट प्रोजेक्ट करके और उसको एक्चुअल में डिप्लॉय किया जाता है. रिस्क मैनेजमेंट, टीम एग्जीक्यूशन, लाइव टेस्टिंग किया जाता है, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर डन इन phase 1 to phase 4. Okay, so this is all about unit 1. Then last point is a GINA. Is a one kind of case study. Already you have done that case study, and here GINA is nothing but a global innovation network and analysis. And इसमें जितने भी innovations
या फिर रिसर्च ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो रहा है उसको ग्लोबली एक दूसरे से एक्सचेंज करने का या फिर उसकी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया था। एंड इट इज ऑल्सो डन इन फ्रॉम फेज 1 टू फेज 6, ये 6 फेज से gone through that project has been completed. So this is all about our unit 1. If you have any doubt, you can ask for unit 1, dear student. अगर आपको चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो अगर आपके कोई डाउट्स है, so we can have the discussion on that in our in 5 to 10 minutes. So in unit 2 is all about like data analytics method, जिसमें कुछ पार्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है और कुछ आपका क्लस्टरिंग के ऊपर है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस यानी क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एंड सम गेसिंग यू आर डूइंग, लाइक एजुकेशनल गेस यू आर मेकिंग। एंड इन हाइपोथेसिस लाइक देयर आर मेनली two words are coming like population and sample. sample मतलब population से कुछ samples हम लोग लेके और उसके ऊपर testing या उनका feedback लिया जाता है। Again, whenever some problem is there, so you are guessing something, means there is an hypothesis. तो दो टाइप के hypothesis statement बनते हैं। One is null hypothesis, H0 से डिनोट किया जाता है, and then alternate hypothesis जिसको HA या फिर H1 से डिनोट किया जाता है। और alternate ही हमेशा null की opposite statement जो है ये बताता है। सो जनरली नल मतलब जिसमें हमने बोला कि मीन पैरामीटर म्यू जो है सबने हमने बोल दिया कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 20 है। हम इक्वलाइजेशन जनरली इसमें यूज करते हैं। और इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? नो म्यू इज नॉट इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20। तो ये तीन टाइप के अल्टरनेट स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हो सकते हैं। सो नल इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमेशा पहले नल स्टेटमेंट बनाया जाता है एंड यू परफॉर्म द डिफरेंट टेस्ट लाइक टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट, जिससे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि नल स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं है। अगर ट्रू है तो ओके, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है वो केस में। So here, whenever you are working on a hypothesis testing, there are two types of tests: parametric test and non-parametric test. So parametric test जो होता है इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या इक्वेशंस है वो जनरली इसमें यूज होते हैं। सो इसमें मीन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको जो है ये यूज किया जाता है। एंड हर एक का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे मीन मतलब आप लोग जस्ट जो भी वैल्यूज है उसका एवरेज निकालते हो। वेरिएंस मतलब जितनी वैल्यूज दी हुई है हर वैल्यू एवरेज से कितना डिफरेंस पे है वो डिफरेंस निकाला जाता है एंड वो डिफरेंस का स्क्वायर करके उसको समेशन किया जाता है। सो दिस इज एन फॉर्मूला। सो ये मीन एक्स बार इज अ मीन, एक्स इज अ इंडिविजुअल वैल्यू, हर वैल्यू को हमने एवरेज वैल्यू से माइनस किया, ओके, और उसका एडिशन किया, समेशन किया, and then we have divided with number of values and इसको स्क्वायर करते हैं हम वेरिएंस के लिए। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वी हैव सीन द नंबर ऑफ एग्जांपल्स आल्सो हाउ टू फाइंड आउट दिस। We have seen that hypothesis testing is having a two types of test, parametric and non-parametric. अगर mathematical equation है mean, variance, standard deviation, तो मैथमेटिकल नंबर या फिर दो जो सैंपल दिए जिसको हमको कंपेयर करना है, अगर दोनों में नंबर ऑफ सैंपल सेम है तो हम लोग जाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। अगर दोनों सैंपल्स जो है उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम नहीं है या फिर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी नंबर है या फिर रेंज में दिया हुआ है या फिर टेक्सचुअल कुछ डेटा है लाइक कलर है रेड, ग्रीन, येलो, लाइकवाइज ऐसे टाइप का अगर कुछ डेटा है उसके ऊपर जब टेस्ट परफॉर्म करना है, सो यू हैव टू गो विथ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट टाइम। सो पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जांपल है जेड टेस्ट, टी टेस्ट। टी टेस्ट में आता है स्टूडेंट टी टेस्ट एंड वेल्चन टी टेस्ट। देन अनोवा टेस्ट, वन वे और टू वे अनोवा टेस्ट। एंड नॉन पैरामीट्रिक के एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन सम एग्जांपल लाइक विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट एंड क्रूस्कल टेस्ट जो है वो होता है।
टी टेस्ट जो है ये मेनली वर्क करता है डिफरेंस बिटवीन द मीन पे वर्क किया जाता है एंड ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन पे वो क्या करता है, वर्क करता है. सो मेनली इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ मीन ऑफ टू नंबर्स. So here are two like populations are given. Either you can compare two population or compare the two samples. And here we are comparing that the mean of two sample or two population are same or not. And here we are using a degree of freedom also while we are finding the calculations. ओके तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मुश्किल है लाइक आना एग्जाम में बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. But you should know the conceptually very properly how the t-test is working. Then Wilcoxon ransom test जो है ये non parametric test है. And here it uses a ranking system. इसमें जितने भी samples होते हैं like n1 and n2 उसमें जितने भी numbers रहेंगे जितने भी सैंपल रहेंगे हर सैंपल को उनके वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में उसको एक रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है. सो इट इज अ रैंक बेस्ड एल्गोरिथम और प्रोसीजर. एंड वी हैव सीन इट्स एग्जांपल आल्सो लाइक देयर आर सपोज टू फैक्टरी रेट्स आर गिवन. अगर आप देखोगे फर्स्ट फैक्ट्री के लिए 5 नंबर्स हैं एंड हियर ओनली 4 नंबर्स. तो दोनों में सैंपल नंबर सेम नहीं है, एक में 5 एक में 4 है. सो वी कैन नॉट गो विद अ टी टेस्ट. अगर दोनों में सिमिलर वैल्यूज होते थे तो हम टी टेस्ट के लिए जाते थे. दोनों में यहाँ पे 5 है 4 है इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे, विल्कॉक्सन रैंसम टेस्ट के लिए. एंड इसमें again it is having its own table where we are finding the n1 and n2 का जो रेशियो है टेबल से उसको फाइंड आउट करके जो भी वैल्यूज दिए होते हैं फैक्ट्रीज के उसको रैंक प्रोवाइड करके जिसका रैंकिंग सबसे कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कम है, जैसे फैक्ट्री 2 में 4 ही सैंपल है तो इसका जो रैंकिंग का एडिशन आया है उसको ही हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से. एंड देन वी फाइंड आउट दी like our conclusion or decision. Now here whenever you are performing hypothesis testing there is and two types of error is occurred, type 1 error and type 2 error. So in a type 1 error like type 1 error तब आती है जब null hypothesis true है लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट करने के बजाय क्या कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया. मीन्स रिजेक्टिंग अ null hypothesis when it is true और उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है. एंड टाइप 2 एरर जो होता है इसमें वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. फॉल्स था नल हाइपोथेसिस फिर भी हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड इट इज डिनोटेड बाय द बीटा साइन. So this is an table using which you can understand very properly. या फिर ये statements are more than enough to understand like type 1 error and type 2 error. Type 1 is rejecting null hypothesis when it is true and type 2 means accepting a null hypothesis when it is false. That's it. Then ANOVA test is used when you have more than 2 population. Always remember अगर 2 population है हम T test के लिए या Z test के लिए जाते हैं. अगर 2 से ज्यादा population है और उसको आपको compare करना है, मतलब 2 से ज्यादा चीजों को compare करना है, so that time you have to go with an ANOVA test. So जिसमें बहुत सारे formulas and examples already we have gone through this. You just go with that video if you want to just go and find out how to solve the ANOVA example. Okay, very next is an clustering. So clustering ये it is a part of machine learning. Machine learning में 3 types के learning होते हैं, supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. So here सुपरवाइज में आता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. अनसुपरवाइज्ड में आते हैं क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन. सो इन अ यूनिट 2 वी आर concentrating on clustering. It is an example of unsupervised learning. Unsupervised learning ये प्रेडिक्शन के लिए कभी भी यूज नहीं होता है. So clustering and is an unsupervised learning and used for description purpose. And like association rule is again an unsupervised learning. बट रिग्रेशन इज एन सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग है तो ऑब्वियसली किसके लिए यूज होता है, प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है.
सो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस यूनिट में क्लस्टरिंग. So clustering is nothing but like when you want to combine the similar kind of data. If you can see, this is an input जिसमें बहुत scattered data है, अलग अलग टाइप के बॉल है, और इसमें क्या किया जाता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ बॉल से मतलब सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न को क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है हियर. सो दैट इज फाइंडिंग अ similarity in a input and like making in a combining them in a one cluster जो एक दूसरे से similar है. So like there are number of different applications of clustering also. So clustering के application generally होते हैं image processing में इसको use किया जाता है, medical फील्ड में इसको यूज किया जाता है, एंड कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है. एंड के मीन्स में आप 1D या 2D का जो डेटा है उसको आप कंपेयर कर सकते हो, और इसका एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से देखा था, और आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी उसको अपलोड किया था गूगल क्लासरूम में. सो जब 2D का डेटा दिया जाता है, एंड वेरी फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दैट डेटा. तो फर्स्ट इसमें हम बोलते हैं सीड पॉइंट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू क्या है. अगर के की वैल्यू नहीं दी है तो हम लेते हैं के की वैल्यू 2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के? के मतलब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में इस डेटा को डिवाइड करना है. अगर हमने 2 ली तो आपको 2 सेंटर पॉइंट लगेंगे. हमने अगर के की वैल्यू 3 ली तो हमको 3 सेंटर पॉइंट लगेंगे. तो स्टार्टिंग में कोई भी 2 वैल्यूज को आप एज अ सीड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट कंसिडर करो. क्लस्टर 1 का एक और क्लस्टर 2 का है. Then after that we have to find out a distance of every other data node with this center, कि कौन सा डेटा कौन से सेंटर से पास में है. That we have to find out, and to find out the distance between two values we have to use a Euclidean distance formula, x1 minus x2 bar plus y1 minus y2 square, and इसको स्क्वायर रूट में हम लोग डाल देते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे 2 सेंटर पॉइंट लिए. वेरी फर्स्ट सेंटर इज 3,5 एंड सेकेंड इज 9,8, और यहाँ पे फर्स्ट डेटा जो है हमारा 5,7 है. तो इसका डिस्टेंस हम पहले सेंटर 1 से फाइंड आउट करेंगे एंड सेंटर 2 से फाइंड आउट करेंगे, और जिसका भी डिस्टेंस कम आएगा इसका या फिर इसका, जिसका भी कम आएगा तो हम क्या करेंगे, जिसका डिस्टेंस कम है we will just place that data in that cluster. That's it. So here using this formula we are just putting the values and finding the answer of like for distance from that number to center 1 distance and center 2 distance. अब दोनों को compare करेंगे and we know that root 8 is less than root 17, तो ये वैल्यू चली गई C1 क्लस्टर के अंदर. ऐसे हमने C2 हर एक वैल्यू का हम लोगों ने निकाल दिया. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट अ न्यू क्लस्टर. न्यू क्लस्टर हमको मिल गए हैं कि C1 में 3 वैल्यूज आ गई, C2 में 3 वैल्यूज आ गई है. अब हमको ये इटरेटिव मेथड है, क्लस्टरिंग इज एन इटरेटिव मेथड. तो इटरेटिव मेथड के लिए अगेन न्यू क्लस्टर सेंटर वी हैव टू फाइंड आउट. तो न्यू क्लस्टर सेंटर जब हमको फाइंड आउट करना है तो ये जो क्लस्टर इसके हर x को हम ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड आफ्टर दैट हर इसके y को हम लोग ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय, एज देयर आर 3 नंबर्स सो डिवाइड बाय 3. तो ये क्लस्टर 1 का सेंटर हम लोग को मिल जाता है. लाइकवाइज वी विल फाइंड आउट द क्लस्टर 2 सेंटर. अगेन वी विल डू द सेम प्रोसीजर बट फॉर न्यू क्लस्टर सेंटर पॉइंट. ओके, वापस निकाला, वापस जिसका स्मॉल डिस्टेंस है वो हमने उस क्लस्टर में डाल दिया. अब ये प्रोसीजर हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, हाउ मच टाइम वी हैव टू कंटिन्यू दिस इटरेशन. सो अंटिल वी जब तक हमको ये जो क्लस्टर सेंटर से ये नेक्स्ट स्टेप और प्रीवियस स्टेप में सेम नहीं मिल जाते हैं तब तक करेंगे, या फिर काफी बार यूजर ही बता देता है कि कितने इटरेशन तक जाना है. सो डिपेंड ऑन दैट यू हैव टू एंड विद द के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. नाउ के मींस में नंबर ऑफ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के होनी चाहिए के -1 या के, जैसे हमने बोला कि के की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 2 ही क्यों, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं. ओके, व्हाट इज अ गुड नंबर फॉर के, हाउ टू फाइंड आउट दैट. सो फॉर दैट एंड heuristic method of WSS, that is within sum of square, ये वाला मेथड जो है उसमें यूज किया जाता है.
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक WSS का एक फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यूज पुट करके कर्व फॉर्म करते हैं, और इस कर्व में जहाँ पे नी वाला एक शेप आता है, तो ये नी वाले शेप में जो भी वैल्यू रहेगी वो टाइम पे उस ग्राफ की, उसको हम बोलते हैं के की वैल्यू, दैट इज एन मोर बेटर टू यूज. So this is how the clustering actually works. So you should know what is clustering, how it algorithm works, when, how to stop the K-means algorithm, how to find out the center of K-means algorithm, what are the real-time applications of K-means clustering algorithm. So this can be some questions on unit 2 on clustering. Then on unit 3, if you have any doubt in unit 2, just put in a chat box your doubts or queries. Now unit 3 is about association rule and regression. So दो algorithm हम लोग को देखने हैं इसमें. So association rule is an unsupervised learning and it is not used for prediction. It is used for description purpose, and it is used to find the hidden relationship in a data, or the relationship are represented as a rule. So which product tend to be purchased together. तो जनरली मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए या फिर सिमिलर टाइप के कस्टमर जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. तो इसका मेन बेसिक एप्लीकेशन है मार्केट बास्केट एनालिसिस. So apart from that market basket analysis, the different use cases of association rule are in a retail store, medical, manufacturing, telecommunication, banking, and insurance. And we have seen the example also how to find out the association rule. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, दो चीजें यूज होती है, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस इसमें यूज किया जाता है, और हर एक का फॉर्मूला है. अपार्ट फ्रॉम दैट लिफ्ट एंड लीवरेज आर आल्सो बीन यूज्ड. सो अगर लिफ्ट की वैल्यू अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है दो प्रोडक्ट जो उन्होंने परचेस किए. लिफ्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है. अगर लेस देन 1 है तो देयर इज अ निगेटिव रिलेशनशिप. ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ कभी भी साथ में परचेस करना पसंद नहीं करते हैं लोग. लाइकवाइज रूल को डिनोट किया जाता है लाइक एक्स इम्प्लाइज वाई और एक्स टेंड्स टू वाई के फॉर्म में. देन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कैंडिडेट रूल को फाइंड आउट करने के लिए 4 डिफरेंट पैरामीटर्स हैव बीन यूज्ड. सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट एंड लीवरेज इसको यूज किया जाता है. एंड एसोसिएशन रूल जो है इसमें जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिए होते हैं, सो स्टेप 1 में हर एक आइटम सेट ये कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट मिनिमम सपोर्ट जो है इट्स प्लेज अ मेन रोल हियर, जिसमें अगर मिनिमम सपोर्ट आइदर परसेंटेज में या वैल्यू में दिया जाता है तो उस मिनिमम सपोर्ट के नीचे जितने भी लोग होते हैं सो उसको रिमूव मतलब प्रूनिंग किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेप में जाने के पहले. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रूनिंग स्टेप. इसमें दो टाइप के स्टेप होते हैं, कैंडिडेट जनरेशन एंड प्रूनिंग. कैंडिडेट जनरेशन में जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ किया जाता है. जैसे स्टेप 1 में खाली आइटम सेट में 1 आइटम था, आफ्टर दैट वी हैव मेक इट 2, देन नेक्स्ट स्टेप में आएंगे 3. अगेन आफ्टर कैंडिडेट जनरेशन इन इसकी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जाता है मिनिमम सपोर्ट से. मिनिमम सपोर्ट से जो भी वैल्यू इक्वल या नीचे सॉरी नीचे रहेगा उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. लाइकवाइज सो दिस स्टेप इज एंड कंटिन्यूअसली गोइंग. एंड जो भी रूल हुआ है उस रूल का हम लोग लीव सपोर्ट लीवरेज निकालते हैं एंड वी फाइंड आउट लाइक which rule is more appropriate and useful for us. So likewise here after that the validation and testing is like इसके अंदर जो है
like if you have to improve the a priori efficiency, there are different approaches, like you can use a partitioning and sampling, then transaction reduction, then dynamic item set counting, and hash based item set counting you can use. Then regression में दो part होते हैं, linear regression and logistic regression. Regression is a supervised learning method and it is used for the prediction purpose. लीनियर रिग्रेशन जो होता है इसमें इनपुट वेरिएबल जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और आउटकम वेरिएबल जो होता है ये डिपेंडेंट होता है. इनपुट कितने भी हो सकते हैं बट आउटकम वेरिएबल एक ही होता है. सो मल्टीपल इनपुट वेरिएबल एंड वन आउटपुट वेरिएबल. तो लीनियर रिग्रेशन में सेवरल इनपुट्स वेरिएबल्स आर देयर बट ओनली वन कंटिन्यूअस आउटकम वेरिएबल इज प्रोवाइडेड. देन इसके बहुत सारे यूज केसेस है, लाइक लीनियर रिग्रेशन के रियल स्टेट के लिए इसको यूज होता है, इसके प्रेडिक्शन करने के लिए होम के प्राइजेस या फिर डिमांड फोरकास्टिंग इन योर लाइक रेस्टोरेंट और इन अ मेडिकल एग्जांपल टू फाइंड आउट लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ दैट treatment likewise. And here we are using a formula of line like y equal to mx plus b, जिसमें m is indicating a slope, x is a change in a x, and then b here is an y intercept we are using. Formula y equal to beta 0 plus beta 1 x1 or x2, and then epsilon. Y is outcome variable which is an independent variable, and beta 0 is y intercept, beta 1 is slope, then x1 is an independent variable, that means an input variable, and e is an random error we are using. Then here, like after that, the second which is coming is a logistic regression. ये हो गया लीनियर रिग्रेशन, जिसमें लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज, किसके लिए यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी कर्व क्या होती है, फॉर्मूले के हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है और उसके रियल टाइम एप्लीकेशन क्या, ये पता होना चाहिए. आफ्टर दैट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, इट इज मेनली वर्किंग ऑन अ कंटिन्यूअस आउटकम वेरिएबल and linear regression is used for continuous outcome variable and logistic regression is used for categorical outcome variable, जिसमें आउटपुट जो होता है ये ट्रू फॉल्स पास फेल येस, मतलब दो वैल्यूज में इसका आउटपुट जनरली होता है. अगेन इट्स यूज केस इज मेडिकल, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग लाइकवाइज. देन इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज f of y इक्वल टू e raised to y डिवाइडेड बाय 1 प्लस e raised to y. एंड हियर y वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. अगर माइनस वैल्यू है y की तो f of y की वैल्यू 1 होती है, और अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर वैल्यू है तो f of y की वैल्यू 0 होगी, और पॉजिटिव की तरफ y की वैल्यू जा रही है तो f of y की वैल्यू ये 1 होती है इसके अंदर. एंड द कर्व इज हियर सिग्मा बेस कर्व या फिर एस शेप कर्व इसको बोला जाता है, जिसमें वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे y की 0 से लेके 1 के बीच में खाली टॉगल करती है. दिस आर द f of y की वैल्यू जो होती है वो. So this is some difference between linear and logistic regression. Till the time, just somebody take a screenshot of attendance and share with me. Again, if you have any question, you can put in the chat box. So this is all about the next is an ROC curve. ROC curve यानी जिसको बोलते हैं रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसमें हम लोग TP, FP, TN, FN ये निकालते. TP मीन्स ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव. ये वैल्यू जो है आगे हम लोग को यूज होती है प्रिसीजन एंड रिकॉल के लिए, जो हम यूनिट 4 में देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सम एडिशनल रिग्रेशन मॉडल आर लाइक रीज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन लाइकवाइज. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं यूनिट 1 के. उसकी क्या क्या 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, बट दीज आर
नॉट ओनली लाइक सिर्फ ये क्वेश्चन पे रिलाई मत करो, ये क्वेश्चन प्लस आप थोड़ा बहुत पीपीटी से भी यू हैव टू रीड आउट कि हर एक कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए अगेन यूनिट 1 यूनिट 2 के, यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर and just understand like what kind of question and what kind of answer it is. So here from my side I have done. If you have any question, just ask from your side or you can put in a chat box. Yes, dear student, I am waiting. If you don't have any doubt, you can put that all doubts have been solved. Likewise, you can just put, I am waiting for your comments. Okay, if you have no doubt, I'm just ending a meeting. Still, if while like reading, if you have any doubt in between, you can anytime ask me.